پی ڈی ایم کی حکومت کے سر سے خطرہ ٹل گیا۔ نون لیگ نے رکڑک معاملے پر اتحادی جماعتوں کو راضی کر لیا۔ جے یو آئی فے، بی این پی مینگل اور پی کے میپ کا مشترکہ اجلاس۔ نون لیگ کی نمائندگی اور وفاقی وزیر اعظم نذیر طارق ایاز صادق نے کی۔ اتحادی وفاقی حکومت سے غیر ملکی سرمایہ کاری بل میں ترامیم کا مطالبہ منوانے میں کامیاب۔ ترمیمی بل جمعے کو سینٹ میں پیش کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت معاشی صورتحال پر اجلاس۔ شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو واضح اہداف دیے۔ بولے آئی ایم ایف سے موجودہ پروگرام پورا کریں گے، برآمدات میں اضافے کے لیے ایکسپورٹس کی بھرپور مدد ہوگی، گردشی قرض میں کمی کی ترجیح، بجلی کی پیداوار میں اضافہ کریں گے، توانائی کی بچت کے لیے عمومی رویوں میں بہتری کے لیے مہم شروع کی جائے۔ تاجک صدر علی رحمان کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ وزیر اعظم ہاؤس آمد پر شہباز شریف نے شاندار استقبال کیا۔ تاجک صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ تاجک صدر اور وزیر اعظم کے درمیان 1 on 1 ملاقات۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی کیے گئے۔ پاکستان وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ روابط کا فروغ چاہتا ہے۔ کاسا 1000 منصوبے کی جلد تکمیل کے خواہش مند ہیں۔ تاجکستان اہم وسطی ایشیائی ملک مختلف شعبوں میں مزید فروغ چاہتے ہیں۔ پاکستان تاجک بہن بھائیوں کا دوسرا گھر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ تاجک صدر نے کہا پاکستان اور تاجکستان یکجان 2 قالب ہیں، تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ The Security Council, the Economic and Social Council, the Human Rights Council, the International Court of Justice, and the Secretary General and Secretariat of the United Nations. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نیو یارک میں سلامتی کونسل کے زیر اہتمام پائیدار عالمی امن و سیکیورٹی کے عنوان پر مباحثے میں شرکت۔ بولے کوپ 27 میں لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام بڑی پیش رفت ہے۔ عالمی سطح پر قیام امن کے ساتھ سماجی و معاشی ترقی کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ بین الاقوامی تعلقات میں انصاف کے لیے اقوام متحدہ پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مزید ملکوں کو ویٹو پاور دینے سے عالمی سطح پر خلیج بڑھے گا۔ I can tell you that security of whether it's our diplomats, or other personnel in foreign missions here, or people, civilians also, because I think میں اس پہ یہ بالکل کہنا چاہوں گی، بہت ایک عام تاثر ہے کہ جی سویلینز ہو گئے شہید تو اٹس اوکے، آف کورس اٹس ناٹ اوکے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت کل عدم تنظیم کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ کلبھوشن یادو کیس میں بھی پاکستان نے ثبوت پیش کیے۔ سمجھوتا ایکسپریس واقعہ بڑا ثبوت ہے۔ بھارت پاکستان میں امن نہیں چاہتا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا روانی کھر کی نیوز کانفرنس۔ If the rupee is allowed to slide and move according to the market mechanism, so the exports will go sky high. I wish it would have gone, and I would have been happy as Pakistani, but it only increased in the first 3 years 800 million. It is the tough 400 billion the state has given subsidized loans, and the industry matched 500 billion. With that, actually you have now increased in the export. معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ کہا ٹیکسوں کی وصولی ہمیشہ بڑا مسئلہ ہے، پالیسیوں کے تسلسل میں مشکلات کا سامنا رہا، برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔
कोरोना की वजह से बहुत से मुल्कों ने टैक्स रेट में इजाफा किया। हमारे पास भी टैक्स टू जीडीपी रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मईशत को यरगमाल बना लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से सदर ममलिकत आरिफ अलवी की मुलाकात। सदर ममलिकत ने इसहाक डार से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। मोनिस इलाही भी मिले। इमरान खान ने मोनिस इलाही को पीटीआई क़यादत के फैसले पर एतमाद में लिया। चुन चुन के इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो इस मुल्क में भागे हुए थे, आज वो सारे बारी बारी वापस आ रहे हैं और उनके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है। एनआरओ 2 दे के एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया था और ये अब एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। हमारी माइशत बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। इस माइशत तबाही की तरफ जा ही इसलिए रही है कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। पीटीआई इमरान खान कहते हैं असम्बलियां दिसंबर में तहलील होंगी। तारीख का ऐलान 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक लाहौर में होगा। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मुल्क के साथ वो किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकता था। नून लीग को एनआरओ 2 उन्होंने दिया। सब ड्राई क्लीन हो रहे हैं, किसी से मदद नहीं मांग रहे। मईशत तबाह हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे नाअहल करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि ये जो चेहरा इस निज़ाम का हमारे कौम के सामने आ जाए और ये पूरा एक ये जो फिल्म है, ये लाइव शो एक तरह से चल रहा है पूरी कौम के सामने और ये समझते हैं कि क्या इससे इनकी मकबूलियत बढ़ी है। लोग नफरत आज मजीद कर रहे हैं और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इनको मुसल्लत कैसे किया गया और क्यों अभी तक इलेक्शन नहीं कराए जा रहे और इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए अभी तक ज़बरदस्ती बेसाखियों के साथ इनको मुसल्लत किया जा रहा है। हमारी मईशत आज तबाह हो चुकी है। 1100-1200 अरब के इन्होंने अपने केस माफ करा लिए। महंगे तरीन कर्जे लिए जा रहे हैं इस वक्त और कौम को मकरूज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं इलेक्शन का नाम लूं तो इनकी टांगें कांप जाती हैं। आज तक जवाब नहीं मिला कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए कहां से आए। सुप्रीम कोर्ट में खत्म होने वाले केसेस को चैलेंज करेंगे। इक्तदार में आकर इनके एनआरओ 2 को उड़ा कर रख देंगे। करप्ट लोगों को बचाने के लिए कवानीन में तरमीम की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में कोई ओपन एंड शट केस है, यानी कि जिसमें कोई लंबी चौड़ी गवाही एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। वो ये है कि ये 16 अरब रुपया जो इनके नौकरों के अकाउंट में आया है और फिर वहाँ से इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी नज़र आ रहा है। तो बता दें कि जी ये हमें फ़लाँ साहब ने या कोई बेनिफैक्टर या इसमें तो वो कतरी ख़त भी नहीं है। ये बिल्कुल सीधा सीधा लूट मार का निज़ाम है और यकीनन हमारा एहतसाब के निज़ाम की भी कमज़ोरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद कहते हैं इम्पोर्टेड सरकार के आने से मुल्क तबाह हो रहा है। सलमान शहबाज के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले। करप्शन की बात करते शर्म आनी चाहिए। इनको लूटमार का हिसाब देना होगा, किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। सलमान शहबाज ने जो ज़बान इस्तेमाल की उस पर अफसोस हुआ। वज़ीर आला पंजाब और मोनिस इलाही से असद कैसर की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा वफाकी हुकूमत से ना मईशत संभली और ना बची कुची सियासी साख। रियासत बचाने का नारा लगाने वाले अनासिर बुरी तरह एक्सपोज हो चुके। शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा की कुर्सी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। पंजाब के फंड रोक कर आवाम दुश्मनी की गई। वफाक के गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। अवाम के आगे आप एक्सपोज हो चुके हो। आपको ये मैं वादा करती हूँ कि चाहे जिस मर्जी दूर दराज किसी जजीरे के अंदर आप फार्म हाउस खरीद लो, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को बेच के आप जहाँ पनाह लेने की कोशिश कर रहे हो कि आपको लंदन में वहाँ तक आवाज़ें चोर चोर की नहीं आएंगी, तो लोग आपका मुहासबा करेंगे। लूटी हुई दौलत आपको हम कहीं भी हंडाना और सुख के साथ
इंजॉय करना नसीब नहीं होने देंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट फरोख्त करके जहां जाएं कौम छुपने नहीं देगी। ये लोग अवाम में निकलेंगे तो लग पता जाएगा, लूटी दौलत सुख से नहीं खाने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 2013 में नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया। मकसद नौजवानों को रोज़गार की फराहमी था। 2018 में मुल्क पर प्रोपेगेंडा अगर वो मुसल्लत हुआ, उन्होंने हमारे शुरू किए गए मंसूबों पर तख्तियाँ बदली। नौजवानों के मसाइल को देखते हुए प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जा रहा है। 5 करोड़ से ज़ायद नौजवानों को प्रोजेक्ट्स के ज़रिए रोज़गार मिलेगा। सदर ममलिकत ने फवाद असदुल्ला खान की बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो बाद अज रिटायरमेंट मुलाजमत की मंजूरी दे दी। मुलाजमत 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 19 दिसंबर 2022 से दी गई है। दोबारा मुलाजमत सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन 14 के तहत वज़ीर आज़म के मशवरे पर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बेंगल बुज़दार विलेज में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, तबाह होने वाले मकानात का मुआयना किया। मुतासरीन के इस्तकबाल पर मुराद अली शाह बोले, आप खुद मुश्किल में हैं, इस्तकबाली वाली तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। हमने जो कुछ भी किया वो कम है, मुतासरीन को घर बना कर देंगे। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल खाने आमद, अफजाल थैलेसीमिया फाउंडेशन की तकरीब में शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा, यूएई की हुकूमत की मदद से सिंध में फलाही काम कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह बोले, मोज़ी मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है, मुफ्त इलाज की सहूलियत की फराहमी ज़रूरी है। यूएई के कौंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, खिदमत जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब और मोनिस इलाही से नोबल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफज़ई की मुलाकात। पंजाब के स्कूलों में 25,000 असातिज़ा की खाली असामियों पर भर्ती का ऐलान। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, स्कूलों और मदरसों में जिस्मानी सज़ा देने पर पाबंदी का कानून लाएंगे। प्राइमरी की सतह पर पंजाबी तालीम के लिए असातिज़ा भर्ती करेंगे। तालिबात के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का आगाज़ कर रहे हैं। मलाला यूसुफज़ई की चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दामात की तारीफ़। पंजाब हुकूमत ने मौसम सरमा की छुट्टियों का बाकायदा ऐलान कर दिया। पंजाब भर में 24 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज़ होगा। 2 जनवरी 2023 को पंजाब भर के स्कूलों में दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने मौसम सरमा की छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया।